So whatever is the problem, whatever is the content, we are just going to study about the importance of air. So air around us, as you know, number of gases around us. Okay, so air is a mixture of number of gases. Air is nothing like simply that is oxygen, simply that is nitrogen, or simply that is anything like that. So air is a mixture of gases. Okay, so as we know, we are surrounded by atmosphere, and in atmosphere a number of gases are there, and the mixture of that gases are called as air. So please write down what is the air. We are surrounded by number of, We have to write. yes बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या, number of gases around us, mixture of gases are called air. सर कहीं से सर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है. So most percentage नंबर उसके बाद क्या लिखा है? we are surrounded by number of gases around us. Mixture of gases are called air. Mostly nitrogen, oxygen is having mostly nitrogen and oxygen is the part of air. Okay, I'll be giving you the percentage composition, but right now अभी आपको इतना जाना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पार्ट होते हैं एयर के. ठीक है, air is present everywhere around us, and it can be defined by some activities. Can anyone read the activity number 1? सर कहना सर यशोप्रदर सर कहना है. सर कहना है. Shraksha Singh Tomar. Yes, sir. Sir, activity 1, aim to know the presence of air. Material required, empty glass bottle, bucket filled with water. Procedure. Take an empty glass of water, turn it upside down. Now dip the open mouth of the bottle into a bucket filled with water as shown in the figure. We observe that water does not enter in the bottle. Now tilt the bottle slightly. We observe that now water enters the bottle and we can see bubbles coming out of the bottle and bubbly sound.
This shows that the air was present in the bottle. The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air, and air even with when it is upside down. That is why water does not enter the bottle when it is pushed in inverted position, as there is no space of air to escape. Uh, when the bottle was tilted and the air was able to come out from the bubbles of water filled up the empty space that the air has occupied. Conclusion: air is present everywhere around us. It fills that complete empty space. It has no color and can see through it. It is transparent. Okay, Athav Kumar, can you explain it? सर इसका जो एम है वो है कि हमें ये कि एयर की प्रेजेंस बतानी है। हमें मटेरियल चाहिए कि एम्प्टी ग्लास, एक बकेट चाहिए वाटर से भरी हुई, उसके बाद हमें एक एम्प्टी ग्लास बॉटल को अपसाइड डाउन करके उसको डायरेक्ट वाटर के अंदर डाल देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ, पर हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो उसके अंदर पानी जाने लगेगा और उसके बाहर से बबल आने लगेंगे और बबली साउंड आने लगेगा, क्योंकि जो एयर था वो उसके अंदर भरा हुआ था, इसके कारण वाटर उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा था। टिल्ट करने से हवा थोड़ा सा बाहर निकला तो थोड़ा सा पानी अंदर चले गया, उसके कारण बबल आ गया। जब वाटर के अंदर मैं अगर सीधे कर बॉटल को डालूंगा तो वो उसके अंदर से, जब तक उसको मैं टिल्ट नहीं करूंगा, एयर जब तक निकलेगी नहीं तब तक वो उसके अंदर एयर जाएगी, वाटर जाएगा भी नहीं। और जब एयर निकलेगी तो वो उसमें बबल छोड़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो एक्टिविटी तो ये दिखा रही है कि बबल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। और जो हमने अभी देखा उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं एक ग्लास लूं और उसके अंदर अगर पेपर डाल दूं और उसको डायरेक्टली डिप करूं बिना टिल्ट किए हुए, तो उसके अंदर एयर प्रेजेंस होने की वजह से वो सही तरीके से पेपर को भिगोएगा नहीं, बिकॉज उसके अंदर एयर होती है और वो वाटर को ब्लॉक करके रखता है और वो पास नहीं होने देगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन एयर हर जगह होती है। इज इट राइट और नॉट? यस सर। सर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ऐसे पहले भी। चलो बढ़िया। तो पहले मैं सोचती थी जैसे पानी से भरी मैंने भी बायजूस की वीडियो में देखा था ये वाला एक्सपेरिमेंट। मैं बचपन में सोचती थी कि इसके अंदर पानी क्यों नहीं जाता है ना, मैं भी यही सोचती थी, फिर इस बाद में समझ आया चैप्टर पढ़ने के बाद। उसके बाद सर मेरी दीदी ने मुझे बताया, क्योंकि सर दीदी तो मेरे से 4 साल बड़ी है, उन्होंने बताया कि इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहता है, तो एयर मतलब कि एयर की वजह से पानी नहीं जा पाता अंदर। दीदी को मैंने देखा नहीं है क्लास। सर अभी सर आई थी दीदी, परसों आई थी 10 को 10th को आई थी क्लास में। यस सर। सर लास्ट बेंच पे बैठी सर थी। मेरे लैपटॉप में बैटरी कम है तो सर मैं डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ। अभी क्या हो सकती है? सर मेरी मम्मी आपसे मिलती कब, ऐसा मैं कुछ बताते भी नहीं। तो एक दिन मेरी शिकायत करके आ गई मम्मी। बेटा बाद में करते हैं, पहले आप इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास एयर की जो प्रेजेंस है, एयर में हमने देखा कि थोड़े बहुत कंटेंट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मोस्टली प्रेजेंस होती है। उसके साथ साथ जो एयर होता है उसको हम कैसे समझते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि वो एयर उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, हर जगह प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट, एक तो हमारी एक्टिविटी के अंदर और एक मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाया भी है, कि उस एक्टिविटी को देख करके हम समझ सकते हैं और अपने घर पे भी वो एक्टिविटी कर सकते हो आप, कि ग्लास को उल्टा करके आप ब्लॉक को नीचे डालने की कोशिश करना। जब आप टिल्ट करोगे तो वो अपने आप से वो जो बुलबुले होंगे वो उसके अंदर से निकलने लग जाएंगे, क्योंकि अंदर एयर प्रेजेंस होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और एयर किससे मिलके बना है उसकी पहले हम बात करते हैं। हालांकि हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आपको मोस्टली कंटेंट ने बता दिया है कि एयर किससे मिलके बनी होती है। सर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और सर 1% अदर गैसेस। ओके, सो व्हाट इज एयर
मेड अप ऑफ। तो एयर के लिए क्या क्या होना, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो गैसेस तो जनरली जितनी भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं सब एक एयर का ही पार्ट है, लेकिन मोस्टली नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। कैन एनीवन रीड द कंटेंट? एयर इज द मिक्सचर ऑफ। Sir, can I? Can I? ओके, सो एक्सेस इन so much. Yes, sir. Okay. Sir, what is air made up of? Air is a mixture of several gases, water vapor, and dust particles. A human being respires about 22,000 times every day and takes about 16 kg of air. Air contains mainly nitrogen, oxygen, and smaller amounts of argon, carbon dioxide, water vapors, and traces of helium, neon, krypton, and xenon. Water vapor. Moisture is present as बस water. बेटा, तो सबसे पहले एयर की बात करते हैं। एयर किससे मिलके बना होता है? तो एयर के अंदर कुछ गैसें होती हैं, लिखना। एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, बाकी जितनी भी गैसें हैं, जितनी आप गैस जानते हो, जैसे कि नोबल गैसेस भी जितनी होती हैं सारी की सारी, जैसे जीनोन, अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी जितने का नाम आपको मैंने बताया एटलीस्ट। आपने हाइड्रोजन, O2 के बाद ऑक्सीजन, क्या लिखा है? और जो आपने पिछली क्लास में SI लिखवाया था वो किस चीज के लिए था? SI वाली गैस क्या लिखाया था? SI। SI। हाँ सर, आपने पिछली बार। सिलिकॉन। हाँ सर, वो क्या होता है? सर सिलिकॉन। ओके ओके, सिलिकॉन, सिलिकॉन। अच्छा, मैं समझ रहा था कि कोई डेफिनेशन लिखवाई थी। तो जीनोन, ये सब गैसें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। रेडॉन, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, जीनोन होती है, रेडॉन होती है। सर तभी बैच का नाम भी रेडॉन पर आया। मैंने नाइट पे कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या? खड़ी थी। क्या? क्या कोई पूछ रहा था कि आप शिखर के बैच का नाम भी तो जेनन और रेडॉन पढ़ा है। बेटा बातें कम किया करो, जब बात करने का टाइम है तभी करनी है बातें। जब मैं कहूँ कि बात करने की जरूरत है केवल तब बातें करनी है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जीनोन, रेडॉन, ऐसे बहुत सारी गैसें होती हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। जो मोस्टली कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा पार्ट आपके जो पेज है उस पे ग्रीन, उस पे एक वो सर्कल बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो दिखाई पड़ रहा होगा। उसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है। आप देखो तो नाइट्रोजन पूरा ग्रीन वाला दिखाई पड़ रहा है। सर हमारे तो सब ब्लैक एंड हमारे ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो एक जो सबसे बड़ा पार्ट है वो नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन है 78.08%। सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का। अच्छा, 78.08% का मतलब क्या हुआ? अगर 100 ग्राम गैस है तो 78 ग्राम तो नाइट्रोजन है, बाकी में बची हुई चीजें हैं, और उसमें भी जो आपका ऑक्सीजन है वो भी अराउंड 21%, यानी कि 20.95% के अराउंड ये पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। जिसमें एक और कंटेंट होता है जो ज्यादा मात्रा में है, वो है आर्गन। आर्गन का भी परसेंटेज लगभग 1 के अराउंड होता है, लेकिन आर्गन ये गैस है, ये किस काम में आती है यूज? बेटा ये नोबल गैस है। एक तरीके से ये भी गैस ऐसी है जो रिएक्ट नहीं करती है, और आर्गन गैस का भी यूज है, ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पर हमें वैक्यूम डालना हो और रिएक्टिविटी नहीं चाहिए हो, तो वहां पर यूज कर सकते हैं इसको। 0.93% होती है आर्गन, और बाकी जो कंटेंट है उनमें जैसे आपका नियॉन, जेडॉन, उनका आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इन तीनों का परसेंटेज याद रखना। नाइट्रोजन का 78% याद रखना, इसका 21% डायरेक्टली याद रखना, पॉइंट में याद करने की जरूरत नहीं है, और इसको 0.93% पूरा याद रखना। ये 3 कंपोनेंट के एटलीस्ट परसेंटेज याद रखना गैस में। ओके,
Okay, sir. Okay, sir. आगे बढ़ूं? लिख लिया? Sir, 1 second, sir, 1 second. Yes. कि जल्दी लिखो। सर लिख लिया। सर CO2 का हमें एवरेज परसेंटेज क्या रखना है? याद करना बेटा, 3 ही का याद करना है। वगैरह 1 से भी कम होती है, आपको नहीं याद करना है वो। 0.00 में याद करो तो सबका याद करना पड़ेगा फिर तो। 1 से भी कम होती है वो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो हम बात करते हैं वाटर वेपर की। सबसे पहले वाटर वेपर क्या होती है? कैन एनीवन टेल? सर जो हम लोग वाटर evaporate करते हैं, जो हमें जो गैस मिलती है, सर गैस जैसा ह्यूमिड होता है सर, वो मतलब लिक्विड का गैस वाटर वेपर बनती कैसे है? Evaporating water. Evaporating water. जो वाटर गैस बन जाती है, जब वो कूल डाउन होकर वाटर बनती है, उसको वाटर वेपर कहते हैं। नो सर, सर वो होता है जब हम लोग जब पानी को जब गर्म करते हैं, बेटा साधारण भाषा में कहें तो गैस जो वाटर का ही गैसियस फॉर्म है, यानी कि जब वो इतना वेपोराइज कर, इतना उसको हम टेम्परेचर दे दें कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपोराइज कर दे और वेपर में बन जाए, यानी गैसियस फॉर्म में बन जाए, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो कोई पढ़ेगा वाटर वेपर? Pralika Mishra. समय Water vapor. Moisture is present at water vapor in the atmosphere. Water vapor rise high up into the atmosphere and get cooled to form clouds. These bring rain both on land and oceans, show in produce in polar regions. The water vapor controls the climate conditions. The presence of atmosphere can be felt in our daily life. When air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cold surface. This shows that water is present in the air. Can anyone explain? sir, can I? Can I? Athav? Yes, sir. सर जो मॉइस्चर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होता है, और जब वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में होता है तो वो कूल डाउन होकर क्लाउड्स बन जाते हैं और वो फिर रेन करते हैं। और जो कूलर रीजन जो होते हैं वहां पर स्नो गिरती है। वाटर वेपर जो होता है वो क्लाइमेट कंडीशन के कारण कंट्रोल होता है। जो मॉइस्चर होता है वो डेली लाइफ में प्रेजेंस होने का मतलब हम लोग फील कर सकते हैं कि वो डेली लाइफ में है। और वो जब ज्यादा फुल सरफेस की कांटेक्ट में आते हैं तो वो कंडेंस होकर ड्रॉप ऑफ वाटर के फॉर्म में कूल डाउन उस सरफेस के आसपास हो जाता है, और इससे ये पता चलता है कि वाटर एयर के अंदर प्रेजेंट है। ओके, gaseous form of water is called water vapor. In the atmosphere,
moisture is present as water vapor, water vapor is formed at high temperature. High temperature, in fact, at boiling temperature of water, at boiling temperature of water. When vapor goes to cool climate, it forms cloud and snow. अब ऊपर जाता है वाटर वेपर तो वो क्लाउड बनाता है, और अगर हमारे आसपास के कूल क्लाइमेट कंडीशन में रहता है तो उसे हम बर्फ कहते हैं या स्नो कहते हैं। सर कुछ रीजन में ऐसा क्यों होता है कि सर जैसे ग्वालियर में हमेशा बस बारिश होती है और सर कुछ रीजन में ज्यादा ठंड पड़ती है, तो सर वहाँ पे बस वहाँ पे स्नोफॉल क्यों होती है सर, लेकिन कभी कभार यहाँ पे भी तो बारिश होती है और सर साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ती है सर, कभी कभार माइनस में या फिर सर 1 या फिर 2 डिग्री सेल्सियस कभी कभार रहता है, तो सर यहाँ पे क्यों नहीं आती सर स्नोफॉल? बेटा स्नोफॉल आने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, माइनस में चाहिए होता है सर, -1 टेम्परेचर 0 के आसपास चाहिए होता है। जैसे अब मनाली या शिमला जैसे प्लेसेस पे जब स्नोफॉल होती है तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 -1 के आसपास लाई करता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना नीचे जाता नहीं है, तो इसलिए जब स्नोफॉल होती है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। एक्चुअली स्नोफॉल नहीं होती, वो भी फॉल एक वाटर का ही है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो जब नीचे गिर रहा होता है वाटर, तो इतना ज्यादा उसमें कूलिंग हो जाती है कि वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है स्नो में, तो वो हमें दिखाई तो यहाँ पड़ता है। पे ओले क्यों पड़ते हैं सर? वो भी तो सर बर्फ ही होते हैं एक तरीके से। क्या बेटा? सर लेकिन यहाँ पे ओले क्यों पड़ते हैं? वो भी तो सर बर्फ ही होते हैं। हाँ, तो वो तो बादल से निकला हुआ है बेटा। देखो, जो हमारा स्नोफॉल होता है वो जब होता है तो स्नोफॉल के टाइम में जो वाटर ही ऊपर से आता है और वो स्नो में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हमारे यहाँ ओले गिरते हैं तो ओले गिरने का मतलब होता है कि ऊपर से जो हमारी ड्रॉप बन रही थी, मतलब जो क्लाउड से ड्रॉप बन रही थी, वो क्लाउड से ड्रॉप ना बनने की बजाय वो कहीं से टूट करके निकल के नीचे आ रहा है। मतलब वो एक तरीके से वो क्लाउड का पार्ट ही टूट टूट के नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो भी वहां तो वो बर्फ ही होता है ना, वो तो डाउनवर्ड जाता है, तो फिर वो नीचे नीचे जब नीचे क्लाइमेटिक कंडीशन में आता है तो यहाँ पर वो गर्म, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है ऊपर से नीचे आने पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप बन जाता है। लेकिन कभी कभी पूरी तरीके से ड्रॉप नहीं बन पाता, इसलिए वो हमें लगता है कि ओले गिर रहे हैं, यहाँ पर स्नो गिर रही है। तो स्नोफॉल और ओले गिरना अलग अलग बातें हैं। स्नोफॉल में भी ड्रॉप गिरती है, लेकिन वहां पर तो नीचे का क्लाइमेटिक कंडीशन ही कूल होता है। हमारे यहाँ का कूल नहीं होता, गर्म होता है, लेकिन फिर भी वो जो ऊपर वाला निकल के आ रहा होता है स्नो, वो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाता ड्रॉप में, इसलिए वो हमें ओले की तरह से नजर आता है। ओके सर। और सर आप प्लीज वो व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन से एक और बार लगा दीजिए सर, मुझे एक पॉइंट लिखना था आखिरी वाला।
Sir, done. सबका हो गया? नो सर, सर जो सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने अराउंड के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? स्नो सर स्नो अराउंड वाला सर, इंक्रीजेस अराउंड, स्नो लिखा है। ओके। Around snow or clouds, so water vapor convert into drops. के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? when के बाद When temperature increases around snow or clouds, so water vapor converts into drops. सर बहुत सारे बच्चों की वीडियो। ठीक है बेटा, वो बाद में पता चलेगा, समय के साथ पता चलता है बाद में। सर क्या पता चलेगा? जब बच्चे फेल हो जाते हैं, बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, एग्जाम नहीं निकलता, तब मुसीबत आती है। तो वही सोचते हैं कि अगर उस दिन हमने वीडियो ऑफ नहीं किया होता तो आज सब सही हो गया होता। लेकिन बेटा उस समय सोचने का कोई मतलब नहीं है। वो हर दिन, ये जो अच्छे बच्चे होते हैं हर दिन बनाते हैं अपना, वो किसी एक दिन वो नहीं सोचते कि अब मुझे अच्छा करना है। जब पेपर के रिजल्ट खराब होते तो क्या सोचते हो? इस बार फोड़ देंगे। और फिर 2 महीने बीते, खत्म हो गए। फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, साइकिल चल रही है। कौन है? हाँ, सर केमिस्ट्री में बेस्ट स्टूडेंट कौन है? केमिस्ट्री में बेस्ट स्टूडेंट ऐसे 2-3 बच्चों में टाई करता है, तो मैं कैसे बताऊं? सर तो 2-3 बच्चे बता दीजिए। नहीं, हम टाई करने वालों को नहीं बता सकते। चलो सर बता दो। सर प्लीज बता दो। हम टाई करने वाली बातें क्यों बताते हैं? एक कंट्रोवर्शियल बातें हम बता बोले थे। दीजिए ना सर, वैसे भी सब एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। हम तो नहीं लड़ते हैं बिल्कुल। कहते हो कि हमारे क्लास में यूनिटी है और सर अरुण सर कहते हैं कि तुम लोग बहुत लड़ते हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे लड़ते हैं, हमें पता है ये हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, तो ये जब मैं ग्रुप से लीव हो गई थी, मैंने सारी, स्तुति भी थी ग्रुप में, तो सारी मैंने मैसेजेस देखे थे स्तुति के फोन में कि क्या क्या इन लोगों ने बोला है। चलो बढ़िया। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं अब, ठीक है? तो पहली बात, जो एयर है, एयर का जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन का कितना है बेटा? सर 21। पॉइंट्स हम इसमें से लिखेंगे। 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सीजन का? मतलब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है O2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का O होता है, गैस का सर O2 होता है। फाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म O2, oxygen found in molecular form O2. 21% of air is oxygen. Okay. सर मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब? बेटा जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का कभी भी आप देखोगे तो ऑक्सीजन कभी ओ नहीं मिलेगा आपको। ऑक्सीजन का जो एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो O होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ट्वाइस बना के रखता है मॉलिक्यूल्स। आगे चल के आपको बताऊंगा बॉन्ड कैसे बनते हैं, लेकिन O2 बना के रखता है। मतलब ऑक्सीजन हमेशा O2 में एग्जिस्ट करता सर रहता है। का एक रूल होता है कि हमें ऐसा लिखना जरूरी है कि हमने ऐसे ओ लिखा है, तो सर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे टू बगल में नहीं लिख सकते सर, थोड़ा नीचे लिखना जरूरी होता है। बेटा वो फॉर्मेट होता है लिखने का O2 का, तो यहाँ पर हम जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेट O3 लिखते हैं नहीं ना। लिख सकते? क्या बेटा? हम O3 नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि कैसे बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आपको मैंने बॉन्डिंग वगैरह तो बताई नहीं है, तो बॉन्डिंग नहीं बता सकते अभी। लेकिन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो O3 होता है उसे ओजोन बोलते हैं। आगे चल के बात करेंगे ओजोन पे हम।
तो ऑक्सीजन फाउंड इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म O2। इसका जो फॉर्मूला होगा ऑक्सीजन का वो हमेशा O2 लिखा जाएगा, ना कि ऑक्सीजन लिखा जाएगा, ना कि O लिखा जाएगा। जबकि ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, लेकिन ये O एटम होता है और ये मॉलिक्यूल होता है। एटम क्या होता है? जब सिंगल कोई चीज सिंगल हो, या मतलब आप हाँ तो सर, तो रात में तो प्लांट्स भी नहीं ऑक्सीजन छोड़ते, तब हम लोग फिर कैसे जिंदा है? क्या क्योंकि ज्यादा फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बेटा एयर में तो प्रेजेंट है ना 21% ऑक्सीजन, और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो 1% से भी कम है। तो एयर में तो ओवरऑल परसेंटेज कम ही है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। पर जैसे बहुत भीड़ वाली, जैसे बहुत सारी सिटीज है जिसमें बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर, फिर भी उतना धूल धूल क्यों दिखता है? क्योंकि 1% कार्बन बेटा डाइऑक्साइड। इतना बड़ा इंडिया है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो भी तो 130 करोड़ ही केवल है, और 130 करोड़ को एक साथ रख दो अगर, तो कितने ही पॉपुलेशन हो गई। कितने एक बार में एक मिनट में आप कितनी सांसें ले पाते होगे? कितनी बार सांस लेते हो? कुछ अंदाजा है? 2000 सर 40 to 50 times. हाँ, अराउंड 40 to 50। हाँ, कभी गिना है? नो सर, No sir. बायो वाली मैम ने बताया नहीं। नो सर। सर वो तो सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग अपनी सांस रोक ले तो सर हमारे मतलब कि 1 मिनट में एक नेचुरल कंडीशन होती है जिसमें हम हमेशा उतना सर ही मेरी 5th क्लास की बुक में लिखा था कि सर हम 1 घंटे में सर 24,000 टाइम्स लेते हैं। हाँ सर, मेरी भी बुक में यही लिखा था। बेटा 24,000 लेते हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. सर 60 से डिवाइड कर दो ना। 40 आंसर है। सर मॉड्यूल में तो ये लिखा है कि fires about 22,000 time every day. क्या बेटा? सर लेकिन मॉड्यूल में तो ये लिखा है कि जो एक सर इंसान 40 टाइम्स, सर 40 टाइम्स लेता है। 40 नहीं 400 आएगा। सर ये देखिए सर जो मॉड्यूल में हाँ सर 600 आएगा, सर मैं 0 लगाना 600 आएगा ना 600। हाँ, तो 1 मिनट में पर 600 टाइम्स। क्या लिखा है मॉड्यूल में? क्योंकि एक इंसान बस 22,000 टाइम एक मतलब भी एक दिन में बस एक्सपायर करता है। तो पेज नंबर 22,000 टाइम एक दिन में। यस सर 80 वाला पेज नंबर में लिखा है सर। तो 22,000 सर आपने गलत किया है। क्या गलत किया है? सर 6 से 24 कटेगा तो आएगा सर 4। सर यार 22,000 ओवरऑल होता है पूरे दिन का, अगर तो 24 इंटू कितना हो जाएगा? 1 घंटे का 1 मिनट में निकालना है तुम्हें ना। दिन का पता चल गया तो क्या करोगे? मिनट निकाल के, मिनट निकालना है तो आप 60 से डिवाइड कर देना। जो टोटल मिनट एक दिन में कितने होते हैं? 24 इंटू 60 होते हैं। Yes sir. डिवाइड कर देना लगभग। ठीक है, चलो फिलहाल ये हमारे टॉपिक में नहीं है। हमें कितनी टाइम लेते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, वो बायो वाली मैम बताएंगी। ऑक्सीजन फॉर्म फाउंड इन द इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म O2, और 21% ऑफ जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर के अंदर। तो हमने 2 पॉइंट लिख लिए ये। यस सर। Yes sir. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? सर 7 तो सर 16. हैं? सर 16 सर 16. और एटॉमिक नंबर? सर 8. देख के बता रहे हो? सर ऐसे मैंने फ्लो में याद नहीं किए सर, हाँ, मैंने तो बस वही मतलब देख सिंबल लिया याद ना, किए। मतलब कुल मिला के देख लिया, वही बात तो। Yes, sir. हैं? सर मैंने ये नंबर देखा था क्या देखा था? सर 8. ओके, कुछ पॉइंट और लिख लेना। ऑक्सीजन इज most important
पीरियोडिक टेबल में भी लिखा है सर इसका एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मॉलिक्यूल होता है क्या? सर, जब मल्टीपल एटम्स होते हैं तब वो मॉलिक्यूल होता है। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूल एटम आएगा तो हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अभी हमें इतना ही जानना है कि ऑक्सीजन, अभी मॉलिक्यूल एटम की बात, अब एटम ही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन फिर भी जो ऑक्सीजन है उसका जो हम टर्म लिखते हैं वो ऑक्सीजन अकेला, यानी कि O नहीं लिखते, बल्कि उसको हम जो ऑक्सीजन मिलती है हमें वो O2 के फॉर्म में मिलती है। तो हमें इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि O2 जो होता है वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है और उसी में ऑक्सीजन में मिलती है। अब सर क्यों आपने O2 होता है? पॉइंट में ओ क्यों लिखा है सर फिर? क्या बेटा? सर आपने सर लेकिन फिर ओ थर्ड पॉइंट में बस ओ क्यों लिखा है? बेटा ऑक्सीजन नाम तो, ये जो ऑक्सीजन सिंबल आया है, जो भी ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीजन से ही बना है ना, वो तो ऑक्सीजन मतलब O से ही बना है ना, लेकिन जो मिलता है हमें वो O2 के फॉर्म में मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्यों होती है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं होती है, तो मैं कुछ नहीं बताता हूँ, कैसे बता दें। लेकिन एटॉमिक वेट इसका 16 ही होगा, एटॉमिक नंबर 8 ही होगा। O2 का निकालना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, तो फिर उसका तो हम ट्वाइस कर देंगे, सॉरी एटॉमिक वेट में। तो 16 ऑलरेडी ऑक्सीजन का होता है, तो अगर O2 का निकालेंगे तो 32 हो जाएगा वो। लेकिन फिलहाल हमें बस ऑक्सीजन का ही निकालना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक वेट 16 होता है, और ऑक्सीजन हमें O2 के फॉर्म में मिलती है। इसी तरह से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी हमें N2 और H2 जैसे फॉर्म में मिलती है। हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला, जो भी हमारा सिंबल होता है वो हाइड्रोजन का H होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो मिलती है वो हमें वो H2 के फॉर्म में मिलती है। उसी तरह से नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो N होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन मिलती है हमें वो N2 के फॉर्म में मिलती है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। लिख लिया? सर मुझे ये पहले, ये आपने लिखा है ना फॉर आवर, सर बॉडी होगा ना ये नीचे? फॉर आवर बॉडी, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, ये सर मुझे पहले बर्थडे लग रहा था। अच्छा, बर्थडे लग रहा था। बढ़िया। सर मैंने पूरा ऑक्सीजन सेंटेंस ऑक्सीजन सपोर्ट इन बर्निंग। बेटा जो ऑक्सीजन होती है वो किसी भी चीज को जलाने में भी सपोर्ट करती है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो आग, चल सकती, क्या आग नहीं चल सकती सर। हाँ। चलो फिर अपन नाइट्रोजन और वगैरह कर लेंगे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में एटमॉस्फेयर और बात करेंगे थोड़ा बहुत, स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ओके सर। ऑल द बेस्ट।